So yesterday, let's start with a quick recap. Okay, so yesterday we saw the SRP principle, right? Single responsibility principle. So in a plain and simple language, it's just a class or a method or any of the modules or any of the microservice or any of the stuff should have only one and only one region to change, right? Because if you are giving multiple responsibilities, then there can be multiple regions for it to change. So whenever we are designing any system, any class, any method or anything like that, okay, we should keep in mind to assign only a single responsibility to that class, so that we don't need to often change it. Probably whenever we require to do some kind of modification, then only we will change in that particular class, right? So this is couple of prints on that similar front, right? Now just focus on this particular point, okay? Single principle जो single responsibility principle, as the name suggests, it's very easy, right? कि किसी भी क्लास में एक ही प्रिंसिपल रखना, probably एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है, very straightforward, right? बट एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते टाइम थोड़ा सा दिक्कत ये होता है, बिकॉज इट्स अप टू द डेवलपर, राइट? कि उसका परसेप्शन क्या है अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. I can treat responsibility to be something else. Someone else can think इस class की responsibility can be something else, right? So that drawing the boundary is a hard thing in single responsibility principle. तो सब कभी-कभी ये भी कहा जाता है, ठीक है, कि however make sure not to oversimplify your code. अब इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि we need to give a single responsibility, so we'll keep the classes with a single method kind of a thing, कि सारे classes में एक ही method रख दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Probably one logical unit, ठीक है, अगर मैं एक माइक्रो सर्विस डिजाइन कर रहा हूँ तो वन लॉजिकल बिजनेस यूनिट. अगर मैं एक क्लास डिजाइन कर रहा हूँ तो प्रोबेबली वन लॉजिकल ग्रुप ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू अ क्लास. अगर मैं एक मेथड कर रहा हूँ डिजाइन, या okay, हाँ, and if you are designing some method, right, so probably we need to keep a simple straightforward logic in that method कि वो ये काम करता है, not to over complicate it और ना ही over simplify करने की भी जरूरत है. So neither to over complicate not to over simplify this. That's what this point I have highlighted. The key is not to overthink. मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में ये भी नहीं है कि प्रोबेबली इतना भी गेट इन्वॉल्व कि वी विल ट्राई टू सेग्रीगेट ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब एक क्लास में एक मेथड रखना है, इस टाइप का भी चीज नहीं अचीव करना है, बिकॉज दैट विल एक्चुअली विल डू मोर हार्म टू योर कोड रेदर देन कि सिंप्लीफाई करने से ज्यादा. ठीक है, सो a good design or a good class design with a single responsibility principle will try to achieve one responsibility, but always keep in mind not to oversimplify. Okay, so this I'll say this is having two links, the one for the building and one for the stickify. So these two sites are great resources for the solid principle of design. ठीक है, एक और चीज, जितने भी सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, राइट, सो दे आर प्रिंसिपल्स फॉर अ गुड क्लास, मतलब गुड डिजाइन की, हाउ यू विल राइट डाउन अ गुड एंड इफेक्टिव कोड, राइट. सो ऐसा नहीं है कि इफ समबडी डोंट नो सॉलिड प्रिंसिपल डिजाइन सो ही कांट राइट अ गुड कोड, राइट. Probably most of the things you guys are already doing, but you don't know कि what is the principle behind that. क्योंकि हम लोग कोड करते आ रहे हैं, सो हमारे दिमाग में फीड है कि ठीक है वी शुड डू इन सर्टेन वे. ठीक है, ये सबको पता था, राइट, कि प्रोबेबली सारे लॉजिक को एक ही क्लास में नहीं डालना चाहिए. Probably this is what the single responsibility principle tries to achieve. Same way when we'll see the next principles, so probably we are already doing that in code, but this is just the principle, so that probably अगर उसके बारे में सोचोगे तो probably और efficient हो पाएगा code. ठीक है, okay, so now let's move on to the next principle. So what is that? Solid, right? We have studied S, now we have this O, right? So this is open close principle, right? अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, the class should be, ठीक है, open to extension but close to modification. जितना पॉसिबल हो पाए, ठीक है, हमें ये अचीव करना है कि we can extend few of the behaviors ताकि we can create some new logic या we can enhance the behavior. ठीक है, but on the same time we should be resilient towards changing the implementation, या जो भी already implemented चीज है उसको change करने से we should avoid. ठीक है,
So the class should be closed for modification but open for extension. ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं. डेफिनेशन क्लियर है, राइट? जितना हो सके एक्सटेंड करना है बिहेवियर को फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स, न्यू बिहेवियर्स, बट as much as possible we should avoid touching the existing code for the modification. ठीक है, प्रिंसिपल क्लियर है, राइट? अब एक एग्जांपल से इसको देखते हैं. ठीक है, let's suppose you need to, let's suppose someone comes to you, ठीक है, and says, hey, I need to find area of rectangle, right? So तुमने बोला, ठीक है, कि probably this guy comes to you and says कि hey, it has some plot, ठीक है, और वो plot का shape एक rectangle है, ठीक है. So hey developer, can you write down a program to calculate the area of my plot, right? So this was the ask from the that person, right? So अभी क्या हुआ था, अभी हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, we were so overwhelmed with that, तो हमने क्या बोला कि I will create a rectangle class, ठीक है. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? Probably double length and probably double width, right? ठीक है, and constructor, ठीक है, with length and width, ठीक है. And then you have something called, let's suppose, area calculator, ठीक है. Now what this is doing, ठीक है, a simple implementation, ठीक है. It takes, let's suppose कि a method calculate area, ठीक है. It will take one of the input क्या मिलेगा calculate area को? Let's suppose rectangle, ठीक है, and probably rectangle R, ठीक है. And what this will do, it will return, ठीक है, probably R dot width, ठीक है, and R dot get length, ठीक है. मतलब सिंपल काम क्या है अभी के लिए एक बार इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है. We got the requirement of calculating the area of a plot, ठीक है. So the plot is passed to us. Let's suppose we have created two class. One is the rectangle class, which has the property associated with the rectangle, right? Rectangle की क्या property हो सकती थी? Length and width, right? Now we have created a class called area calculator, ठीक है, in which we will passing a rectangle and it will give us the area of that rectangle. या फिर और इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं तो उसको क्या करते हैं, ठीक है, probably नहीं तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है. ये एरिया कैलकुलेटर है, एरिया कैलकुलेटर, ठीक है. ये एरिया कैलकुलेटर क्लास है, ठीक है. दिस हैज अ मेथड कैलकुलेट एरिया, ठीक है. एंड लेट्स सपोज इट टेक्स, ठीक है, मल्टीपल रेक्टेंगल ले सकता है, राइट? कि लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास कुछ प्लॉट ऐसा था, ठीक है, तो यू हैव डिवाइडेड इट इन मल्टीपल रेक्टेंगल्स, ठीक है, and you want to calculate the complete plot का area, right? So probably you can have this method accepting multiple rectangles, ठीक है. यहाँ पे सिंपल सा तुम्हारे पास अभी क्या कैलकुलेशन है कि अभी क्या करना है, probably कि for each, right, for each rectangle in rectangles, right, what you need to do, return या फिर area is equal to area plus rectangle का width dot get width into rectangle dot get length, and finally after this bracket end you will just return the area, ठीक है, return area. ये कोड क्लियर है? क्या था इसमें? Anybody who is not clear till here कि इस कोड में क्या है? The requirement was to calculate the area of multiple rectangles, ठीक है, और area of the plot, ठीक है. And currently जो plot था वो एक rectangle shape में आता था. So you have created rectangle class, ठीक है, which will receive the length and the width, and you have created an area calculator class, ठीक है, which takes list of rectangle as the input or array of rectangle as the input, ठीक है. And for each of the rectangle it calculates the area by this formula, width into length,
adds in the current area, ठीक है, and then finally returns that area, right? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है. That particular person was happy because he is not now able to calculate the area of that particular rectangle or area of that particular plot, right? So that person was happy. You don't know anything, right? क्योंकि तुमको तुम्हारे पास वो रिक्वायरमेंट आया था कि प्लॉट है वो रेक्टेंगल होता है and you just need to calculate that area. So तुमने ये कोड लिखा and it was well enough, right? Now that particular person comes up and say कि hey, now I have discovered a plot, ठीक है, which probably looks like this, ठीक है, and something like this, ठीक है. So probably this part is a triangle, ठीक है, and this is a rectangle. हो सकता है ये रिक्वायरमेंट, ये ट्रायंगल पार्ट था, ये ट्रायंगल पार्ट था, ये रेक्टेंगल पार्ट था, राइट. नाउ दैट पर्सन कम्स टू यू, हे कि अब यार ऐसा है कि प्रोबेबली जो प्लॉट का मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा था, द प्लॉट एरिया दैट आई वाज कैलकुलेटिंग is not only now rectangle, probably it has some triangular shape in it, right? So can you do something? So you will say very good, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो हमने को यहाँ पे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? Probably now this should not be rectangle, right? क्योंकि अब rectangle की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो probably you will receive object, right? करेक्ट, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ दिस रेक्टेंगल यू विल रिसीव नाउ ऑब्जेक्ट, राइट? क्योंकि अब वो रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है. यू विल क्रिएट अ क्लास कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है. ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, ले सपोज कि किसी भी पैरामीटर से हाफ bh 1/2 into ba base into ऐसे lb into b ऐसे कुछ था क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल का है क्या? half base into height, like okay, is it for right angle triangle? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ठीक है. ले सपोज कि अभी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है. तो प्रोबेबली ये फॉर्मूला था हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट. सो दो पैरामीटर इसको रिसीव करना है, वन इज बेस, वन इज हाइट, राइट. सो यू हैव क्रिएटेड अ ट्रायंगल क्लास विद पैरामीटर बेस एंड हाइट, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुमने कैलकुलेट कर लिया, क्रिएट कर दिया एक रेक्टेंगल क्लास. तुमने यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह पे बोला ठीक है, आई विल हैव नाउ ऑब्जेक्ट एज द इनपुट, राइट. फिर यहाँ पे जब कर रहे थे फॉर ईच रेक इंडेक्स, तो यहाँ पे रेक्स की जगह पे तुम इसको क्या कर दोगे, प्रोबेबली ऑब्जेक्ट पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल अब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, राइट. नाउ ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में तुमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. तो वो क्या चेंज करोगे? अब यहाँ पे कैन यू राइट समथिंग लाइक दिस कि फॉर ईच प्रोबेबली ओबीजे इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इफ ओबीजे मतलब इफ ऑब्जेक्ट इज अ ट्रायंगल, ठीक है. मैं सूडो कोड में इसलिए लिख रहा हूँ कि प्रोबेबली जावा में प्रोबेबली इज इंस्टेंस ऑफ है, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ है, एंड प्रोबेबली सी प्लस प्लस में आई गेस इट डायरेक्टली इज, राइट. तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आई एम जस्ट राइटिंग अ सूडो कोड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इज अ ट्रायंगल, ठीक है. तो क्या करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू एरिया इज इक्वल टू एरिया प्लस, या फिर इसको कर दो एरिया प्लस इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस. तो ट्रायंगल डॉट गेट, ट्रायंगल को टी कर देते हैं, टी आर डॉट गेट बेस, बेस इनटू tr dot get height, right? Something like this we need to do. Same way we need to write a if block here, ठीक है. If obj is a rectangle, ठीक है, तो नॉर्मल वाला फ्लो, राइट. एरिया प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, why can't we add calculate area in object class itself? करेक्ट, हाँ उसी पे आ रहे हैं एग्जैक्टली अभिराम, ठीक है. इसलिए मैंने बोला देखो, सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ द डिजाइन या जो भी प्रिंसिपल है, राइट, many times what happens कि we are already trained to do coding in such a way, right, but we don't know what is the principle behind that. तो इजी एग्जांपल में तो ये बहुत क्लियर लग रहा है, राइट, कि प्रोबेबली इसको वहां मूव कर देना चाहिए था, ठीक है. बट ऑन अ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल समटाइम्स इट गेट डिफिकल्ट, राइट. सो व्हेन यू हैव द प्रिंसिपल बैकिंग दैट, तो यू कैन अप्लाई अ लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड एनी ऑफ द क्लास. अगर कॉम्प्लेक्स है तब भी तुम रीजनिंग अप्लाई कर सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है. विल कम टू दैट कि क्या प्रॉब्लम इसके साथ होगा, एंड देन एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है. सो अगर ऑब्जेक्ट इज अ रेक्टेंगल, देन आई विल से एरिया प्लस इज इक्वल टू रेक्टेंगल का जैसे एरिया हम लोग पिछले में कैलकुलेट कर रहे थे, राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ये रिक्वायरमेंट सफाइज कर रहा था, राइट. जब फर्स्ट टाइम यू कैलकुलेटेड रेक्टेंगल एरिया, राइट,
at that particular time you are not going to have any of the hint, ठीक है, कि कल को रेक्टेंगल की जगह पे ट्रायंगल शेप आ सकता है, राइट? फर्स्ट टाइम पे तुमको तुम्हारे पास विजन नहीं है, राइट? मतलब साइकिक पावर नहीं है कि तुमको पता चल जाए कि कल जो तुम्हारे पास जो रिक्वायरमेंट लेके आया है पीएम, प्रोबेबली वो कल को बोलेगा कि नहीं, इसको रेक्टेंगल को मुझे ट्रायंगल का भी चाहिए, राइट? यू डोंट नो दैट. नाउ the first time that you encounter ki now he has asked for the triangle, this is very well possible, right? The next time he can ask for कि now the plot is circular as well, right? ऐसे circular में plot मिल रहा है उसको. He can ask कि you have some trapezoidal kind of a shape, right? So he can ask for multiple shapes kind of a thing, right? So each time he comes up with a new requirement, तुमको क्या करना पड़ेगा? Probably you will keep on adding it here, right? So probably for the first or the second thing you will not realize it. अगर मैं चलो अभी के लिए जब रेक्टेंगल वाला आया था, ठीक है, व्हेन द रिक्वायरमेंट वाज ओनली फॉर द रेक्टेंगल, क्या कोई प्रॉब्लम था इस डिजाइन में? एनीवन हु वांट्स टू डिस्कस कि जब सिर्फ मेरे पास रेक्टेंगल का डिजाइन था, कोई और एक्स्ट्रा शेप नहीं था, तो वाज देयर एनी प्रॉब्लम विद द करंट डिजाइन जो हमने इंप्लीमेंट किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम था? एनीवन वांट्स टू डिस्कस दैट? Can we have this like can we have like a shape as an interface, and we can have like a rectangular this particular, and whatever the shapes they are asking, we will implement from the shape, which will be having the calculate area method. हाँ, So okay, we will that's perfectly fine, ठीक है, that's perfectly fine, and that is actually the correct thing, and then that we are going to see just after this keywords how the problem is getting solved. But the first time when we encounter only a rectangle and you were not at all aware कि something like this, like the triangle is going to come up in future or the circle is going to come up in future, you have no clue at all. मतलब ये तो एरिया में बोल रहा हूँ तब तुमको पता है, राइट, कि शेप में बहुत सारे शेप हो सकते हैं. But if something related to your business domain, probably you don't know, right, कि these things can come in future. So imagine from the scenario when you had only knowledge about that rectangle and you were not aware that any further shapes can come up in future, right? So was there any problem with that design? सिर्फ रेक्टेंगल मुझे पता है. स्वाति said no. Any other want to discuss कि कुछ प्रॉब्लम था, कोई प्रिंसिपल ये वायलेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे हैं, राइट? सो टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स की any principle is getting violated in that particular case. When we had only the rectangular shape, so the design that we have drawn, we will have a rectangle class, will have a area calculator class which takes a array of rectangle as the input and returns us the final area. So was there anything wrong with that particular design? Probably not, right? Because we are not aware कि something might like this might come in future, right? अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे? If you don't know कि triangle is going to come in future, then how you will say कि we'll create a shape class probably and let them extend from it, right? This is a rectangle, so you know कि rectangle is a shape. But अगर ये तुम्हारा कोई business entity होता, so probably you don't know, right? कैसा कुछ आ सकता है. That's why you have went ahead with that design, right? Now, as soon as the triangle comes up, right, it gives you indication कि hey, as now the triangle is implemented, ठीक है, I needed to change something in my code, right? Now it can give me a further hint कि आज को उसने triangle बोला है, ठीक है, कल सिर्फ yesterday he told only about rectangle, now he's telling me about triangle, ठीक है. There can be chances कि next day he will ask for something else, right? कि जो कि एक बार हो चुका है, ठीक है, उसके होने के चांसेस ज्यादा है, राइट? द थिंग दैट हैज हैपेंड इन पास्ट, इट्स मोर प्रोन टू हैपन इट अगेन, राइट? फिर से होने के चांसेस ज्यादा है. नाउ एज ए इंजीनियर, ठीक है, यू नीड टू थिंक हे समथिंग इज रॉन्ग विद दिस डिजाइन, राइट? कि आई नीड टू चेंज दिस, आई नीड टू चेंज दिस, ठीक है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है, लेट मी थिंक ऑफ समथिंग एल्स, राइट? So now what he is gonna do, like what the Aviram and Aditya were suggesting, ठीक है, so what we'll do something like this, ठीक है. Let's clear this frame, ठीक है. हमने क्या बोला, right, कि we have this rectangle class, we have this triangle class, right? Now this is going to have a length, width, area as the method,
ठीक है, which returns length into width, ठीक है, you have same base, height, and you have some area here, ठीक है, you have defined area here, half into base into height, ठीक है, something like this, ठीक है. Now what you will do, you will say कि hey, ये जितने भी क्लास हैं ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट केम अबाउट रेक्टेंगल, नाउ द रिक्वायरमेंट इज कमिंग अबाउट ट्रायंगल, एंड इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट कैन कम अप समथिंग एल्स, राइट. सो यू वेंट अहेड एंड आस्क्ड कि ऐसा क्या था कि अभी तुमने रेक्टेंगल बोला था, ट्रायंगल बोला, राइट. सो ही सेड कि हे, ये सारे जो भी चीज है ना, दिस इज एक्चुअली अ ज्योमेट्रिकल शेप जो कि इन विच माय लैंड कैन बी, राइट. सो यू गॉट एन आइडिया. सो प्रोबेबली व्हाट यू डिड, you created a shape class, ठीक है, which has some property, probably area, ठीक है, क्योंकि area is going to be common for all the shapes, right. And now you have some calculate area method, ठीक है, calculate area method, which you have kept as the abstract, right. क्योंकि कैलकुलेट एरिया मेथड जो है ये कॉमन होने वाला है सारे शेप्स में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, राइट. बट ये जो कैलकुलेट एरिया है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल ऑफ दिस, राइट. एंड कोई इसका डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, राइट, बिकॉज ट्रायंगल का कुछ और एरिया हो सकता था, रेक्टेंगल का कुछ और है, स्फेयर का कुछ और हो सकता है, राइट. स्फेयर नहीं, सॉरी, सर्कल. स्फेयर का वॉल्यूम होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है, राइट. हाँ. सो व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड अ शेप क्लास, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, एंड लेट दिस रेक्टेंगल, rectangle, triangle, triangle, extend this class, right. Can we do something like this, ठीक है. So we have created an abstract class called shape, which has a method calculate area, and whoever is extending this need to provide the implementation for this calculate area, right. Whether it's a length and width, rectangle ka ya base and height, they just need to provide the implementation for this calculate area. Now if we just go ahead and see the same thing, right. अच्छा, वो शायद रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है. तो एरिया कैलकुलेटर में आते हैं, ठीक है, एरिया कैलकुलेटर. वी हैड समथिंग लाइक दिस, कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया. अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे थे, राइट. बीच में जो हमने मॉडिफाई किया था, वी स्टार्टेड टेकिंग ऑब्जेक्ट. नाउ प्रोबेबली व्हाट वी कैन डू, वी कैन थोड़ा फाइन ग्रेन कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग शेप ले सकते हैं, राइट, बिकॉज एवरी रेक्टेंगल, एवरी ट्रायंगल इज अ शेप एज वेल, राइट. सो वी कैन क्रिएट अ शेप, ठीक है, यहाँ पे शेप्स, ठीक है, एंड फॉर ईच शेप इन शेप्स, ठीक है, वी आर सेइंग एरिया प्लस इक्वल टू, ठीक है, शेप डॉट कैलकुलेट एरिया, राइट. विद दिस, ठीक है, कुछ चीजें जो सॉल्व हो गई, राइट. अब ले सपोज कि कल को मुझे एक स्फेयर ऐड, सॉरी, सर्कल ऐड करना था, राइट. सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स गो बैक हियर, ठीक है. सर्कल ऐड करना है, नो प्रॉब्लम, विल ऐड अ सर्कल व्हिच विल से कि सर्कल, ठीक है, इट एक्सटेंड शेप, ठीक है. एक सर्कल था जो शेप को एक्सटेंड करता था, सेम वे ये भी एरिया का मेथड इंप्लीमेंट करेगा, कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया, इट विल हैव सम फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स एरिया, ठीक है. एंड देन यहाँ पे इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, राइट. You pass me shape of a rectangle, you pass me shape of a triangle, you pass me shape of a circle, everything is gonna work fine here, right. So now the changes in this class is very minimal, right. इस क्लास में कोई चेंज हुआ, एक्चुअली कुछ चेंज हुआ ही नहीं, राइट, क्योंकि तुमने एक बार शेप लगा दिया, उसके बाद नो मैटर व्हाट ऑल एंटिटीज कम, इट विल बी एबल टू सफाइज दैट नीड, राइट. चेंजेस क्या हुआ टोटल में, तुम्हारे पास क्या चेंजेस हुआ, तुमने बस एक क्लास इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, सर्कल, विच इज एक्सटेंडिंग द शेप, राइट. तुम्हारे एग्जिस्टिंग किसी भी क्लास में कोई चेंज नहीं हुआ. सो कैन वी से समथिंग लाइक दिस, नाउ माय क्लास इज क्लोज्ड, ठीक है, फॉर मॉडिफिकेशन बट ओपन फॉर एक्सटेंशन, राइट. क्योंकि रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकता है, रिक्वायरमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, एंड दैट इज नॉट इन योर हैंड, राइट. सो प्रोबेबली योर डिजाइन शुड सफाइज, ठीक है, कि वो क्लोज रहे फॉर द मॉडिफिकेशन बट इट शुड बी ओपन फॉर extension, right.
जब तुम स्टार्ट करे थे इम्प्लीमेंटेशन, यू माइट नॉट हैव आइडिया कि ऐसा फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आएगा, बट एज सुन एज यू इनकाउंटर समथिंग लाइक दिस, टेक अ मिनट, ठीक है, सोचो कि कहां पे गलत है, ठीक है, एंड चेंज दैट, ठीक है। अगर नॉर्मली डेवलपर्स में क्या आदत होती है, देखो स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है, हमने इंप्लीमेंट किया वो, ठीक है, this was one of the very straightforward example, that's what we are saying कि ठीक है, we could have extended from the shape and other things, but normally क्या होता है कि हमें दिखता है कि मेरा काम एक if else ब्लॉक लगाने से वहां हो जाएगा, राइट, वहां पे एक if ब्लॉक लगा और मेरा काम चल जाएगा, so probably they will say कि hey let me just write a if and everything will work fine, well and good, it will work fine, but ultimately कल को सर्कल आएगा तो दूसरा डेवलपर भी बोलेगा कि अरे दो if तो लगा हुआ है, एक if मुझे अपना भी लगाने तो, राइट, so I'll add my own if, एंड लेट्स सपोज एक और डेवलपर आता है, वो बोलता है कि 3 इफ लगे हुए हैं, who will take the responsibility of changing, let me add one more if there, ठीक है, now your class is becoming used, ठीक है, and every time there is some other shape or something like this, your class needs to get changed, ठीक है, which is ultimately you have messed up the design, right. Same way होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी, you start with a single responsibility only, right. तुम्हारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम रिक्वायरमेंट रहता है, तुम एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लास स्टार्ट करते हो, फिर कोई बोलता है कि हे ये वाला चीज ऐड करना है, तब वी डोंट रियलाइज कि ये इसको कुछ नए क्लास में कर सकते हैं, या वी शुड मॉडिफाई दिस डिजाइन बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, एंड यू स्टार्ट एडिंग दैट कोड इन द सेम क्लास, ठीक है। जीत has the, but sometimes it can be difficult to know which part can be extended, what changes can come in future, exactly जीत, इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि the first time when you had this requirement कि calculate the shape rectangle का area calculate करो, at that time we might not be aware कि ऐसा कुछ हो सकता है, so that was perfectly fine to have that design, but as soon as you encounter triangle, that was the biggest mistake that you can do for adding a if else block वहां पे, ठीक है, क्योंकि अब क्या प्रॉब्लम हो गया ना, अब यू नो राइट, नाउ यू कांट से कि हे आई एम नॉट अवेयर कि ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है, बिकॉज नाउ यू नो कि वंस द रिक्वायरमेंट इज केम, इट इज प्रोन टू हैपन इन फ्यूचर अगेन, एक बार जो चीज हो गई है दैट इज प्रोन टू हैपन इन फ्यूचर अगेन, तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि व्हेनेवर यू एनकाउंटर सच से, टेक अ मिनट, टेक अ ब्रेक, ठीक है, सोचो कि उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सो दैट अल्टीमेटली वो रिजल्ट ना करे इन अ लूजली मैनेज कोड, ठीक है। अगर तुम इफ वहां पे ऐड करोगे, ठीक है, ये तुमको लगा कि सिर्फ एक स्टेप की तो बात है, ऐड करने देते हैं, इफ ऐड कर देंगे चल जाएगा, राइट, नेक्स्ट डेवलपर विल से कि हे यहाँ पे दो इफ एडेड, दो इफ तो ऑलरेडी एडेड है, तो मेरा एक इफ लगने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट, तो तीसरे के लिए भी वो आसान है, उसको सिर्फ एक इफ लगाना है, बट व्हेन द न्यू डेवलपर जॉइंस इन, उसके लिए होल्ड टुगेदर उस कोड में 4 इफ लगा हुआ है अननेसेसरी का, राइट, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम इट इज गोइंग टू क्रिएट, एंड अल्टीमेटली वी स्टार्ट लिविंग अप इन दैट पर्टिकुलर मेस। सेम चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वी स्टार्ट विद अ वेरी नीट एंड क्लीन कोड, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे थे, एज सुन एज सम चेंज इन रिक्वायरमेंट हैपेंस, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि यार छोटा सा तो रिक्वायरमेंट है, लेट मी हैंडल इन दिस कोड, राइट, वेल एंड गुड, हैंडल कर दिए, नो प्रॉब्लम, फिर कल को थोड़ा और उसके सिमिलर रिक्वायरमेंट आएगा, यू विल अगेन कीप मॉडिफाइंग द सेम कोड, राइट, एंड देन अल्टीमेटली दैट वो जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तुमने नीट एंड क्लीन कोड लिखा था, दैट विल रिजल्ट इन अ मेस। So the first time you encounter any of the challenge or any of the place where it is violating the principle, take a break and try to refactor the code if it is possible. मतलब अगर allow timeline allow कर रहा है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, right? If that is allowing, always try to refactor the code the first time you encounter it is violating some kind of a principle. ठीक है? Clear till here? यहाँ तक डाउट किसी को? Anyone have any question? Clear, right? ठीक है. So should we proceed to the next principle? Clear है यहाँ तक? ठीक है. Okay. Now let's talk about the third one. ठीक है. S देख लिया सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, O देख लिया ओपन क्लोज प्रिंसिपल, राइट. नाउ दिस इज L, राइट. सो L stands for the name, और ये वन ऑफ द सबसे
मतलब डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। मतलब इट कैन लुक लाइक वेरी सिंपल है, बट जब एक्चुअल इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सबसे डिफिकल्ट वन टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड नाम भी इसका सबसे डिफिकल्ट है। बाकी सबका नाम क्लियर था, राइट? एस से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ से ओपन क्लोज, इन सब का भी नाम सिमिलर रहेगा। बट एल का जो नाम है प्रोबेबली दैट इज ऑन द नेम, दैट इज आई गेस लिस्कोव है या लिबोसॉफ, कुछ भी ऐसे ही, राइट? कुछ ऐसे नाम है, ठीक है। हमको इस पे फोकस करना है, हमको नाम पे नहीं फोकस करना है, हमको इस पे काम पे फोकस करना है, राइट? सो दिस इज समथिंग एल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। क्या नाम है इसका? लिस्बॉक या वॉट एवर दैट स्टैंड्स फॉर एल, ठीक है। नाम है सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसमें क्या बोलता है ये, ठीक है, इसका अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, ठीक है, जो उसका वर्डिंग है उस पे नहीं जाते हैं, समझते हैं कि है क्या ये, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। लेट्स सपोज कि इफ ए इज, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये ए है, ठीक है, ये बी है, राइट? तो इसमें ए क्या होगा? सुपर क्लास, राइट? एंड बी क्या होगा? सब क्लास, दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए, राइट? सो ये सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये बोलता है, ठीक है, इन अ गुड डिजाइन एवरी सब क्लास शुड रिप्लेस इट्स पेरेंट क्लास, या उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सके अपने आप को, ठीक है, या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करे, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग इन द सिस्टम, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सेज, ठीक है, नाम में पता है, राइट? सब्स्टिट्यूशन, राइट? सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, राइट? सो सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बोलता है कि the child class, all the child classes should fulfill all the contract, या फिर at any place it can substitute its parent class without breaking anything in the system। अभी क्लियर है डेफिनेशन? जैसे देखो, अब इसको रियल वर्ड में समझते हैं ये कैसा है, राइट? आई सेड इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? किस टाइप का रिलेशन होता है? चाइल्ड क्लास एंड सुपर क्लास के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? इनहेरिटेंस एंड इज ए, राइट? परफेक्ट, इज अ रिलेशनशिप, राइट? सो बी इज ए, मतलब यहाँ पे बी इज ए हो जाएगा, बट ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंगो इज अ फ्रूट, राइट? राइट? सो हम लोग कह सकते हैं कि मैंगो इज अ फ्रूट, ठीक है। तो जहां भी फ्रूट है वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं मैंगो से, राइट? मतलब कि तुमको कोई बोले कि एक फ्रूट लाके दो, राइट? तो उसके जगह पे तुम मैंगो उसको लाके दे सकते हो, राइट? सेम वे अगर वो तुमको बोलता है कि गुआवा इज अ फ्रूट, राइट? सो समवन आस्क फॉर अ फ्रूट, तो यू कैन से गुआवा, राइट? बट अगर तुमसे कोई बोलता है कि मुझे गुआवा लाके दो, तब तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये ले लो, मैंगो ले लो, राइट? ये चीज क्लियर हुआ? ये चीज समझ रहे हो? देखो इसको फिर से एक बार देखो, समझो कि क्यों है ये, ठीक है। व्हेन आई से इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। सो मैंगो इज अ फ्रूट, राइट? मतलब मैंगो इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट फ्रूट, गुआवा इज अ fruit, guava extends from that fruit class, right? Or inherits the property from that fruit class, right? So jahan bhi if somebody asks me, hey, give me a fruit, so there you are free to give a mango, you are free to give a guava, right? अगर कोई फ्रूट मांगता है और तुम उसको मैंगो दोगे तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं मुझे तो कुछ और चाहिए था, राइट? प्रोबेबली तुमने फ्रूट मांगा, मैं तुमको फ्रूट दे रहा हूँ, बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि हे गिव मी अ मैंगो, राइट? देयर यू कांट गिव अ गुआवा, क्योंकि गुआवा मैंगो को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट गुआवा एक फ्रूट को रिप्लेस कर सकता है। यहाँ क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अब देखो एक काम क्या है, ठीक है। सो लेट्स सपोज यू हैव सम probably same,
विड्रॉल सर्विस, ठीक है, बैंक अकाउंट, या इसको ऐसे करते हैं अकाउंट विड्रॉल सर्विस, ठीक है। ये क्लास है अकाउंट विड्रॉल सर्विस, जिसका काम क्या हो सकता है,